Good evening, ladies and gentlemen. What a delightful evening it is. I extend warm welcome to all the distinguished guests, friends, and journalists who have gathered here today. Your presence makes this event even more special. It's an honor for me to be here today as the anchor for this event. To introduce myself, I'm Amrita Bera and I'm a literary translator. I translate literature vice versa in 3 languages, that is English, Bangla and Hindi. So we are here all today for the launch of the book, The Visionary Leader, that provides insights and tools for becoming an effective leader in today's rapidly changing business world. The book has been written by Dr. Anil Suri, who is a physician, MD Medicine, with over 30 years of experience. Even while he was pursuing his medical career, his passion to support entrepreneurs, CEOs, and executives in the corporate world and individuals with high stress levels and targets in their workplace, leading to chronic diseases, led him to become a credentialed corporate leadership coach, mentor, and trainer. He is an official member of Forbes Coaches Council. He has been awarded with MENA Awards 2019, Dada Saheb Phalke Lifestyle Icon Award Films International 2022. Dr. Anil lives in Dubai and works with corporate companies providing his services mainly on personal development and mentoring individuals and group for CEOs and executives, specifically for stress management, work-life balance, time management, sales training, leadership coaching and training, succession planning, and risk management, to name a few. His message for everyone is dare to dream, find your purpose in life, develop your skills because you are the miracle. So with this, I call upon stage Dr. Anil Suri with a big round of applause. So, may I request Uday Shankar Ganguly, who is a very talented and well-known digital creator, cartoonist, illustrator, and a painter of our country, to do the honors and present him the bouquet. Thank you. So we are privileged to welcome Lieutenant Colonel R.J. Randhawa as chief guest of this event. Lieutenant Colonel R.J. Randhawa is a courageous woman, a Veer Nari who created history by taking an unprecedented decision to become the first woman officer to join the Indian Army after her husband, Kirti Chakraborty, Major Sukhvinder Singh Randhawa, as a supreme sacrifice for the nation, was martyred. Her daughter, Simran Randhawa, has recently written a poignant book, Cost of War. You are having that book. This Cost of War. Thank you. Her daughter Simran Randhawa has written,
having preserved every single memory of her father and her mother's courageous journey in life. So I would like Dr. Vinita Surin to welcome her with bouquet. Oh, bouquet has already been given, but with her gift, a small token of honor. आइए Please give her a loud applause. Next, I would like to invite Dr. Inder Kasturia, consultant, physician and wellness expert at Kasturia Medical and Wellness Center. Victor. I would request Akhilesh Chaurasia to hand over a small gift, a small token of honor. Next, guest of honor, as guest of honor, I would like to call upon stage Mr. Shailendra Bhatnagar, former managing editor at CNBC Awaaz and CNBC Bazaar, a popular face on Indian business TV and stock markets. To welcome him, I would like Dr. Surin to give him a bouquet and gift. Please come. Thank you. Thank you. अब मैं मंच पर हिंदी के बहुचर्चित समकालीन कथाकार श्री विवेक मिश्र को मंच पर आने का आमंत्रण देती हूँ। विवेक मिश्र के 3 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास एवं चयनित कहानियों का संकलन प्रकाशित है। आपकी कहानियों का अंग्रेजी एवं बांग्ला में भी अनुवाद प्रकाशित है। आपको प्रतिष्ठित यशपाल सम्मान, रमाकांत स्मृति सम्मान सहित और भी कई सम्मान प्राप्त हैं। आप साहित्य के अलावा फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं। आपने कई फिल्मों के स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, जिनमें से एक हिंदी एवं एक पंजाबी फिल्म पर्दे पर आ चुकी है और कुछ फ्लोर पर है। सो आई वुड रिक्वेस्ट रमनीत जी टू प्लीज ऑनर हिम विद बुके एंड द गिफ्ट। विवेक जी फोटो के लिए जरा आइए। अरबनी फोटो नहीं आई अच्छी। नहीं उधर उधर। वहाँ देखो। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे बीच हिंदी की लेखिका, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और समाज सेविका सुश्री वंदना यादव उपस्थित हैं। अब तक इनके 2 उपन्यास सहित यात्रा, वृत्तांत, बाल साहित्य, कविता संग्रह, मोटिवेशनल किताब, नवसाक्षरों के लिए पुस्तक, अनुवाद आदि कई कृतियां प्रकाशित हैं। वंदना जी को सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा सम्मान समेत ढेरों और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। मैं वंदना जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं। I think there is I would request Mrs. Kasturia to do the honors.
present her with bouquet and gift. मैडम आप क्या Please give a big round of applause to her. हमारे कुछ मेहमान अभी भी रास्ते में हैं। वो हम उम्मीद करते हैं कि वो किसी ना किसी समय यहाँ पहुँच जाएंगे, पर उनके इंतज़ार में हम अपना समय नहीं नष्ट करना चाहते हैं। And with this, I hand over mic to Dr. Anil Suri. Stage is all yours. Thank you everyone. On? This on, guys? ये आप यहाँ Now? I can hear. Hello. Fine. So, good evening everyone. मैं थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी में ही बात करूँगा। बहुत साल बाहर रहने के कारण मेरी There is a disturbance. Why don't you come here? मैं वहाँ जाऊँ? ठीक, you can hear now. तो मोस्टली आई स्पीक इन इंग्लिश देयर। काफ़ी टाइम से मैं बाहर हूँ तो इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा निकलती है मुझसे। हिंदी समझता हूँ, दिल्ली में रहा हूँ और कई साल दिल्ली में रहने के बाद मैं यहाँ से बाहर चला गया काम करने के लिए। एंड आई वॉज इन सऊदी अरेबिया फॉर 2 years। उसके बाद फिर मैं वहाँ से दुबई आ गया। तो दुबई में ही अब मैं रहता हूँ। 20-25 साल हमें हो गए, मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर विनीता ये पीछे बैठी। और हम दुबई में रहते हैं, 2 बच्चे हैं हमारे और सब कुशल मंगल। और इसी दौरान जो मैंने वहाँ पर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, तो कोई जानकारी नहीं थी कि बिजनेस चलता कैसे है। बस कुछ पैसे थे और तस्लीमा जी आएंगे, थोड़ा सा मैं रुकूंगा यहाँ पर। अरे मेरी जगह बेटा, मैं यहाँ खड़े। ये वाला So the much awaited guest. वो अंदर आ जाओ। So the much awaited guest of honor of the evening, Taslima Nasreen ji, is here with us, and speaking about her is like showing the sun with a lantern. I deem it a great privilege to welcome Taslima Nasreen
a globally acclaimed award-winning writer, physician, secular humanist and human rights activist known for her powerful writings on women's oppression and religious fundamentalism. She is recipient of many prestigious awards across the world, and we are happy to have her at last with us. So, to do the honors, I would request Dr. Vinita Suri to present her a bouquet and a gift. Kindly give her a loud round of applause. Sorry, Dr. Anil Surin, there was an interruption in between, so you can continue. So, welcome everyone who are on board on the stage. It's a pleasure and an honor to have you all with us. And to all my guests, my friends who are over here, it's so glad to see you all after a long time. So, as I was saying that जब मैं बाहर था and I started my private practice, so बहुत सारे rules and regulations को assemble करना पड़ता था to understand what is business and how to run a business. And because as a doctor कोई formal training होती नहीं है private practice करने के लिए या किस तरीके से business को setup करना हो, भले medical की practice हो या कोई और practice हो या कोई और business हो, तो उस दौरान जो मुझे दिक्कतें आई, the problems that I faced at that time, that led me to understand कि एक अच्छे business को चलाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और उसी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने इस किताब में वो संग्रहित किया है उस चीज़ को एंड आई हैव ट्राइड टू समराइज इट इन ए वेरी शॉर्ट। यूजुअली मैं कहता था कि कोई लोग जिनको हार्वर्ड नहीं गए हैं या स्टैनफोर्ड नहीं गए हैं या IIM नहीं गए हैं, बट उनके पास एक इच्छा है अपने खुद का बिजनेस करने के लिए, दे हैव ए डिज़ायर टू स्टार्ट देयर ओन प्रैक्टिस, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, तो उनको सोच के उनको दिमाग में रखते हुए मैंने ये किताब को लिखा है। और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि कोई भी पढ़ेगा इसको तो इट विल बी इजी फॉर हिम टू एटलीस्ट नॉट गो रॉन्ग। एंड इस किताब को पूरा करने से, पूरी तरीके से पढ़ने से, उसके अंदर जो क्वेश्चनर्स हैं उसको करने से, चूँकि मैं कोच भी हूँ और तो मैंने उसको इस तरीके से लिखा है कि जो भी इसे पढ़े वो उसकी कोचिंग प्रैक्टिस जैसी ही है एज ए बिजनेस कोच। तो जिन चीज़ों को मैंने इसमें लिखा है ये उसी के बारे में है कि हाउ टू रन ए सक्सेसफुल बिजनेस, जिसमें विजन और मिशन से लेके आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी तक की बात मैंने लिखी है कि जब आप 57 ईयर्स के हो जाते हैं या 60 ईयर्स के हो जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में तो आपको बोल दिया जाता है कि आपका काम हो गया, एंड देन यूजुअली लोग प्लान करते हैं कि पेंशन प्लान क्या है, आगे का फ्यूचर क्या है। बट बिजनेस में लोग ये प्लान नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, भले वो प्राइवेट प्रैक्टिस बिजनेस हो, मेडिकल की या कोई भी प्रैक्टिस हो। तो आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी नॉट ओनली इन बिजनेस, अपने आप की लाइफ में भी, कि अब आप इस एज के बाद क्या करेंगे, कि आप 60 के हो गए या 55 के हो गए, अगर आपने ये नहीं सोचा है तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको सोचना पड़ता है। तो इस किताब में वही चीज़ को मैंने लिखा है कि आप खुद सोच के प्लान करके अगर अपना एग्जिट स्ट्रेटजी या सक्सेशन प्लानिंग करते हैं तो इट बिकम्स ईजी टू एंजॉय लाइफ, और वो बैलेंस जिसमें आप जीते हैं, you get disease free, which is associated with my medical profession. So it is just a gist about that business thing along with a vision of your business, your desire to take it to a certain level, जिसके बारे में मैंने इसमें लिखा है। तो छोटी सी एक कोशिश है, और चूँकि मुझे मालूम नहीं था कि ये सारी चीज़ें लिखने के बाद करनी होती, बुक लॉन्च करना होता है, मुझे था कि मैं लिख दूंगा तो इंटरनेट में कोई पढ़ लेगा, और कोई पढ़ लेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मेरे से बात कर लेगा। तो मेरे दिमाग में उतनी सी बात थी, पर जब किताब को मैंने प्रिंट मीडिया को दिया तो फिर उन्होंने उसकी स्ट्रक्चरिंग करी, उसके बाद उसकी फ़ोटो बनाया, फिर उसके बाद उसको एक तरीके का डिज़ाइन किया, फिर कुछ चीज़ें उन्होंने हटाई उसमें से, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये कॉपीराइट में आ जाएगा, फिर इसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ों को मुझे कोई खबर नहीं थी इन चीज़ों की,
तो ये मेरी पहली कोशिश है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको एक बार अपनी किताब छोटी सी सही, 50 पेज की सही, पर लिखनी चाहिए। क्योंकि भले इससे दूसरों का फायदा हो या ना, वो बात की बात है, लेकिन जब आप लिखते हैं कोई चीज़ को तो अपना डेवलपमेंट ज़रूर करते हैं। ये मेरा मानना है मेरी इस किताब को लिखने के बाद। और आपको कई चीज़ों की समझ जब पहले नहीं होती है, वो उस समय समझ में आती है कि अगर मैं इसको लिख रहा हूँ और मैं इसे इंटरनेट पे दे रहा हूँ या उसको पब्लिक में दे रहा हूँ, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि मैं क्या लिखूँ और क्या नहीं लिखूँ, क्योंकि इसे कोई ना कोई तो पढ़ेगा। और कोई ना कोई उस समय नहीं, हो सकता है 15 साल के बाद जब आप कोई ना देख रहा हूँ। क्योंकि कल मैं जब दिल्ली में बालको मार्केट के सामने से निकल रहा था तो वहाँ किताबों का ढेर लगा था। और मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब मैं किताब देखता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ। तो बहुत सारी ओल्ड बुक्स जितने होती हैं उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, बेसिकली तो मैं वो ढूंढता रहता हूँ उसमें। सो ऐसे ही कोई कभी आगे जाके जब आप अपनी किताब लिखो तो कोई कहीं ना कहीं वो किताब को ढूंढ के पता नहीं किसका भला हो जाए। तो मेरे हिसाब से सबको एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग लिखते रहते हैं, पर अगर आप किताबों के थ्रू अपनी बातों को अगर बताएं कि किस तरीके से लोगों को जागृत किया जाए, किस तरीके से बिजनेस के लोगों को जागृत किया जाए, किस तरीके से प्रोफेशनल्स को, जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो जिनको ये पढ़ाया नहीं जाता कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, उन्हें बस डिग्री दे दी जाती है और कहते हैं कि भाई आप जाओ नौकरी करो, या अगर नौकरी नहीं कर सकती तो कोशिश करो, अगर चल गए तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं चले तो आप वहाँ भी फेलियर हो। तो हमारी सोसाइटी उस हिसाब से एसेस करती है। ये किताब एक कोशिश है कि अगर वो 8 चैप्टर्स जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, उस 8 स्टेप्स को अगर कोई आदमी कर लेता है तो ये ज़रूर है कि वो कामयाबी में 70 to 80% सक्सेसफुल होगा। इस किताब के थ्रू मैं ये दावा ज़रूर कर सकता हूँ। जो मुझसे गलती हुई और जो मैंने नहीं किया और जो मैंने किया, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। सो पढ़ें ज़रूर। और इसके अंदर में जो भी आपको त्रुटि लगे या जो आपको सजेशंस लगे, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़, हम लोग फेसबुक में एक अपना पेज बना रहे हैं और उस पेज के थ्रू आई बी इंटरेक्टिंग विद द क्राउड। मेरी जो टीम है वो इसमें लगी हुई है। तो जो भी आपकी मंशा हो, जो भी सजेशंस हो, उसमें डालिए, क्योंकि अब एक सीरीज़ है लीडरशिप की। और मैं समझता हूँ लीडरशिप की जो बात है, विजनरी लीडर जो है, लीडरशिप इज़ द मेन क्वालिटी जो हर इंसान के अंदर होती है, जब तक कि आपको अकेले ना छोड़ा जाए। और जब जैसे ही मैं ये कहूँ कि जब आप अकेले चलना चालू करते हैं तो आपके अंदर में जो बिलीव्स हैं, आपका जो फेथ है, आपके जो स्ट्रेंथ है, आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज और वैल्यूज़ हैं, वो सब बाहर निकलना चालू होती है। और आपको उस चीज़ का एहसास होता है कि हु एम आई, मैं क्या हूँ। एंड तब जाके आपको समझ में आता है कि मुझे इस दुनिया में करना क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्यों भेजा गया है और मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। Am I in the right way? I'm actually going in the direction that I am destined to. मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे डर लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो उस समय आपके अपने इनर स्ट्रेंथ को आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रखें, ये इस हर बिजनेस के साथ, बिजनेसमैन के साथ ये होता है। जब वो बिजनेस करने उतरता है तो उसको एक ना एक बार ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ता है जब उसे डिसीजन लेना होता है कि मैं ये रिस्क लूँ या नहीं। और कई बार आपने सुना होगा कि रिस्क लेने से ही इंसान आगे बढ़ता है। गलतियों से डर के, वो क्या बोलते हैं, डर के आगे जीत है। ये सारी चीज़ें सब लोगों ने सुनी हुई। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करने उतरता है तब जाके उसे अपनी शक्ति का और उसके होने का एहसास होता है। और फिर वो एक नई डेफिनेशन अपनी परिभाषा में लिखता है, जो मैंने इस किताब में लिखी। आप सब लोग सक्सेसफुल हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ भी करके जो अपनी ज़िंदगी का निवारण कर रहे हैं उसमें आप लोग सक्सेसफुल हैं, तभी आप लोग यहाँ पर हैं। तो कोशिश करिए कि उन चीज़ों को अगर आप अपने बच्चों तक पहुँचा सकें। और सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम अपने बच्चों को नहीं समझा पाते कि किस तरीके से ज़िंदगी जीना चाहिए। तो अगर आप उन्हें सिर्फ ये बता दें कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और उन्हें उतना गाइड करें कि वो किस डायरेक्शन में जो जा रहे हैं वहाँ उन्हें तकलीफ क्या होगी, और उनको छोड़ दें, वो अपने आप ही मैनेज करेंगे उस चीज़ को। तो वहाँ से एक इंडिपेंडेंट फ्रीडम का एहसास होता है जब आप उन्हें एक विजन देते हैं कि ये विजन को जिसको आप लेके चल रहे हैं उसको फॉलो करने के लिए ये कॉम्पिटेंसीज आप में होनी चाहिए। तो ये उस किताब में मैंने छोटा सा दर्शाया है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, मैं और बोर नहीं करना चाहता आप लोगों को। सो आई विल टेक माई सीट नाउ एंड आई इनवाइट अमृता टू टेक केयर।
अब मैं सब गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग we should unveil the book. Okay. So, for that, we have Mr. Sushil Bharti, Director, Broadcasting, Malwa Studios, with us now. So, I would request him to come for this unveiling of the book. Namaste. Ready. So we stand up and Yes. दुबई में तो मैं तो खुद ही नहीं रहा उन्होंने हेल्प किया So, you can have a round applause. Big round applause. थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू सर Although she has arrived just now, just sometimes back, but I would request Taslima to say a few words, if she can. Taslima ji, just congratulate Dr. Anil Sureen for the book. Thank you so much. Yeah. I am here to release the book and I am very happy. थैंक यू मैम Yeah. I don't know the writer, just I met him today. Congratulate him, Dr. Anil Sureen, for your book. And I am always happy to deal with writers and with when I release good books or when I read good books. I hope that people will read this book and they will find it is very good. And I hope that you will continue writing more books. And yeah, Amrita Vera is my friend and she invited me to be here. So, normally I don't go to, too many programs. And even though I need support to work nowadays, but still I came only because that Amrita Vera, she invited me, Thank you so much. and also it is about books. And as a writer, I feel good when I am with other writers and when I talk about books and I hope that I will read this book and I will like this book and hope you will read this book also. Thank you so much. थैंक यू मैम Thank you so much.
We loved what you said, and you are looking very fresh and beautiful, and you must come out more. Now, I would request Lieutenant Colonel Ajay Randhawa if she wants to say a few words. Good evening, everyone. To begin with, I would like to thank you, each and every one of you, for having me here today. I would like to thank Amrita ma'am for welcoming me to this amazing book launch, and Mrs. Vandana ma'am too. She introduced me to her. And all her work towards literary world, you and ma'am, yours too. I would also like to congratulate Dr. Anil Sureen on the launch of inspiring book Freedom Begins with a Vision. Such an apt title, sir. And today I have the honor of being a part of this book launch, a book that helps to nurture leaders of tomorrow. In my life, I have always believed in one thing, and this is something I often tell my daughter as well, that you can do anything you set your mind to. This book by Dr. Sureen is embodiment of this lesson. His book inspires discipline and guides us toward bringing positivity and lasting change in our lives. A masterpiece like this is no doubt from a great mind like Dr. Sureen, and it is very absolute pleasure to be standing here today in support of your book, sir. A physician, a member of Forbes Coaches Council, life coach and author. There is no task, no accomplishment that he can't achieve. I am proud to be here for the launch of this book about leadership and creating inspiring leaders around us. So let me take a moment to introduce myself. My name is Lieutenant Colonel R.J. Randhawa. I am a first Veer Nari who was commissioned to Indian Army. Veer Nari is a terminology given in Army to war widows. War widows means who lost their husband in line of control or counterinsurgency. So Veer Nari is a terminology given to us rather than calling widows or something else. I was not always as aspirant the defense services. In fact, I lived a very simple and ordinary life, like a daughter, like a mother. I was a teacher also, and I just wanted to lead a normal life, as everyone I think does. But on June 1997, my husband sacrificed his life in line of duty. Being an army kid, he always feel that our kids should be raised in army atmosphere. I am from a civil background, so I didn't know much about army, but it was his dream because he was an army kid. To achieve this unimaginable dream, I reached out to AWA. AWA is Army Wives Welfare Association, dealt by our ladies only, wives of army officers' wives. And I met Mrs. Ranjana Malik. She was chief's wife, then General Ved Malik in 1997. So Dr. Malik and Dr. Ranjana Malik and General Malik took it upon themselves, and together we made this impossible come true. I became the first war widow who could join army. Before that, there were ladies, but they were like unmarried. So I was the first war widow who joined Indian Army. I got a chance to raise my daughter in this atmosphere and to fulfill my husband's dream and to serve this nation. And last year in June 2022, my daughter wrote a book, Cost of War, which is basically our story, or people like us, like who have lost their family members in this line of duty. My daughter was 1.5 years when I lost my husband, and now she is 26. So this is what she has written last year. The book is also painted by her, and she's also written a poem in this. I don't read it. Okay. Part of reading it. The poem's name is Final Goodbye. There once was you, there once was me. If only life wasn't so cruel, we could just be.
Wish the time flee, let me bid you adieu. My last breath is for our nation, but my heart is for you. But my darling, I was born to be a soldier, and now I am dying as one. If only I could grow old with you. If only I could stay. If only. If only I could have one more day to call you mine. One more day to see my little one smile. To see those eyes looking back at me. One more day to be a family. If only. If only the safety of our nation wasn't my duty. If only. Darling, you are my sunshine, you are my heart, but I can feel the darkness creeping in. I can see the first light and the final one. With these last words, let it be heard, for as long as there is you, there is me. For as long as there is a war, there is a shaheed. So this is a poem written by her. And thank you so much for having me, and all the best, Dr. Sureen. Thank you so much. Thank you, ma'am, and thank you, Vandana, ma'am. Thank you. मैं विवेक मिश्र जी से चाहूँगी कि वो कुछ कहें। धन्यवाद अमृता जी, आदरणीय मंच एवं मित्रों। सबसे पहले किताबों की दुनिया में डॉक्टर साहब का स्वागत है। डॉक्टर अनिल सुरीन साहब की इस किताब का आज दिल्ली में बहुत स्वागत। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां। उनको बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से। वो अपने देश बहुत दिन बाद लौटे हैं और इस किताब के लिए बधाई के साथ और आने वाली कई किताबों के लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस, इन तीनों में बड़ा घालमेल है, बहुत कन्फ्यूज़न है। कई बार हम ग्रोथ कोई प्रोग्रेस समझ लेते हैं, कई बार प्रोग्रेस कोई सक्सेस समझ लेते हैं। और इस कन्फ्यूज़न में क्या होता है कि जो भी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हमारे आसपास हो रही है, पैसा आ रहा है, गाड़ियाँ बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो भी हो रहा है आसपास, हम उस सब को कहीं ना कहीं मिक्स करके प्रोग्रेस, ग्रोथ और सक्सेस को मिला जुला के घालमेल करते हैं। एक्चुअल में रियल बिजनेस वहाँ से स्टार्ट होता है जब आपकी ग्रोथ जो है वो प्रोग्रेस में कन्वर्ट होती है, कुछ एथिक्स और उसमें एक विज़न और समाज का भला छोड़ता है। और जब उसमें एक स्पिरिचुअलिटी ऐड होती है, जब आप फ्यूचर के लिए कुछ सोचते हैं, तब कहीं जाके आप एक सफल आदमी बनते हैं। डॉक्टर साहब तो बहुत बिजी आदमी हैं, चाहते तो अपने जीवन भर अपने क्लिनिक में काम करते रहते और अपना अनुभव अपने साथ रख के अपने लिए इस्तेमाल करते। लेकिन यही बात है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं, बुद्ध को पढ़ते हैं। जो आपने पा लिया और पाके आप आनंदित हो गए और अपने लिए रख लिया, वो आपकी प्रगति तो ठीक है, लेकिन वो सफलता नहीं है। जो पा लिया, उसको पाने के बाद जब आप समाज को पे बैक करते हो, दूसरों को लौटाते हो, एक्चुअल में वहीं से आपकी सफलता शुरू होती है। और डॉक्टर साहब आज लौटे हैं और अपने अनुभवों के साथ लौटे हैं। उन्होंने अपना अनुभव हम सबके साथ इस किताब के लिए बांटा है और मैं समझता हूँ कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्ट करेगा, लकीली जिस दिन ये इसका पार्सल आया तो मैं वहाँ पे था और किताब मुझे हल्का सा देखने को मिली। और वाकई मैं समझता हूँ कि केवल भाषा से किताब नहीं बनती, केवल कल्पना से किताब नहीं बनती, जब तक उसमें एक पका हुआ अनुभव नहीं जुड़ता है। तो इस किताब में आप पाएंगे कि केवल भाषा नहीं है, केवल कल्पना नहीं है, केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक ऐसे आदमी का अनुभव है जिसने वो जिंदगी जी है और वो स्ट्रगल देखा है और उन सबको संजोते हुए उसने इस किताब में डाला है। इस किताब का बहुत स्वागत, लोग उसे पढ़ें और कई ऐसी किताबें अक्सर हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वेरी वेल सर। मैं अब वंदना जी से रिक्वेस्ट करूं 2 शब्द कहने के लिए, चाहे आप वहीं से कह सकती हो। मुझे बुला रही आप चाहे तो वहीं से बोल सकते हैं। वही आ
धन्यवाद अमृता जी। आप तो खुद अच्छी एंकर हैं। सबसे पहले मंच को प्रणाम। आज हमारे बीच एक नए ऑथर जन्म ले रहे हैं, उनको मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने न जाने कितने मरीज, कितने रोग ठीक किए, वो आज मन की उलझन में जो जकड़ जाता है इंसान, उसके लिए बेहतरीन हल लेके आए हैं इस किताब के माध्यम। तो मैं ये देख रही थी कि द विजनरी लीडर्स, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग आज ही नीचे बैठ के बात कर रहे थे, एक सीनियर जर्नलिस्ट राइटर हैं, उनसे मैं बात कर रही थी कि हम तमाम उम्र बातें करते रहते हैं कि एक दिन हमने ये देखा था, इस पे लिखेंगे, एक दिन ये हुआ था, इस पे हम बोलेंगे, और वो दिन कभी नहीं आता, और एक दिन हम खुद चूक जाते हैं। तो वो दिन जाने नहीं देना है। ये किताब मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, पर मुझे यकीन है कि ये इस तरह की जो अपने भीतर हम थोड़ी बहुत हिचक लेके चलते हैं या कुछ करने न करने का समय का बहाना लेके चलते हैं, उस सब से हमें मुक्ति तो दिलाएगी ही, और आगे के लिए आसमान भी दिखाएगी। फ्रीडम बिगन्स विद विजन। तो जो विजन है ना, वो कैसे, कहाँ से पैदा होता है? वो हमारी शिक्षा से पैदा होता है। जैसा कि अभी अभी डॉक्टर सुरीन ने कहा कि हर व्यक्ति को एक किताब तो लिखनी ही चाहिए। तो लिखेंगे कैसे? कहा जाता है कि एक किताब लिखने के लिए 100 किताबें पढ़नी पड़ती हैं। एक छोटा सा उदाहरण जो हम सबको मालूम है, मैं यहाँ देना चाहूँगी कि कुएं के भीतर यदि आप बैठे हैं तो आसमान सिर्फ उतना सा दिखेगा जितना कुएं की परिधि आपको दिखाना चाहती है। तो हमारा ज्ञान के बिना मनुष्य का जो विजन है वो उतना ही कम होता है। हम जितने लर्नर लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे सीखते हैं, जितनी किताबें हम पढ़ते हैं, उसके साथ हमारा विजन बड़ा हो जाता है। सपने जब देखेंगे तभी तो सच होंगे, और सपने देखने के लिए सपने देखने की ताब होनी चाहिए। तो वो जो जिज्ञासाएं हैं वो पूरी होंगी जब, तभी तो हम उन सपनों को हासिल करना चाहेंगे। मेरा एक छोटा सा कॉलम आता है, पुरवाई करके एक पत्रिका है, उसमें तो आज का जो कॉलम है उसका विषय इस किताब से काफ़ी मिलता जुलता है कि हम अपने सपने पूरा तो करना चाहते हैं, पर हमारे पास दौड़ भाग में समय कहाँ है। हम सब घर परिवार, रिश्तेदार, नौकरी, अपने काम, सबसे बिजी रहते हैं। तो एक ही उसका मूल मंत्र है कि आप समय पे सोएं, और सुबह जब सारी दुनिया सो रही है, उनकी सुबह 6 बजे होगी, तो आप 4:30, 4 या 5 बजे उठें, अपने लिए बोनस समय निकाल लें। मुझे लगता है ये किताब भी आपके लिए वही बोनस देने वाली है। इसे पढ़िए, और जो अब तक आप अपने लिए नहीं कर पाए हैं, जिसे करना चाहते हैं, वो उस आसमान को पा लेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया वंदना जी। मैं सुशील भारती जी से आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्द कहें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं क्षमा चाहता हूँ कि समय से नहीं पहुँच सका। मैं विवेक जी आपसे विशेष रूप से क्षमा चाहता हूँ। जब मैं पहुँचा तो मैंने सुना कि डॉक्टर अनिल सुरीन जी, जिनकी पुस्तक आज विमोचन हो रहा है, तो बहुत ही तन्मयता से वो बोल रहे थे, और जिस तरह के अनुभव मैंने अभी किताब पलट के देखी है, जिस तरह के अनुभव उन्होंने लिखे, तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक अर्ज है कि वो बहुत कुछ बता देना चाहते हैं और बहुत कुछ समझा देना चाहते हैं इस किताब के माध्यम से। और बिल्कुल डॉक्टर विवेक मिश्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका जो अनुभव है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं समाहित है, और वो शायद इसी वजह से उन्होंने ये तत्परता दिखाई, या ये लगा कि अब ये समय है इस किताब को लिखने का। तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर अनिल सुरीन जी की, आपने ये किताब लिखी है।
और मुझे लगता है कि बड़ा आवश्यक है आज के समय में, बहुत सम्मान होना चाहिए सब साधकों का जो अपने जीवनानुभव जो भी उन्होंने अर्जित किए हैं उनको शब्दों में पिरोते हैं, लोगों तक लेकर के आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज भी एक ऐसे दौर से गुजर रहा होता है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ हिंड्रेंसेस होते हैं, कुछ बाधाएं होती हैं, रुकावटें होती हैं। तो यही वो किताबें हैं जो आपको रास्ता दिखाती हैं, आपका मार्ग प्रशस्त करती हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, खड़े होने के लिए ये आपको संबल प्रदान करती हैं। देखिए, विजनरी लीडर क्रिएटिंग ए फ्यूचर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बड़ा स्पेसिफिक कर दिया है, बहुत घुमाया नहीं है बात को, बहुत ही टू द पॉइंट किया है। लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है कि इस पूरी धरा के ऊपर 750 करोड़ लोग रहते हैं। अगर आप तुलना देखेंगे तो किसी का भी शक्ल जो है वो मिलती नहीं है और जो उनके पास जो ज्ञान है उसको भी आप नहीं तोल सकते हैं। तो हर व्यक्ति डिफरेंट है, हर व्यक्ति अपने आप में एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग है। तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं बहुत शिद्दत से हर व्यक्ति को बनाया है। इसका कारण ये है कि जब आप मिलते नहीं हैं, आप यूनिक हैं, आप असाधारण हैं और आपके जैसा इन 700 करोड़ 750 करोड़ लोगों में कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई पर्पस है कि आपको इस धरती पर लाया गया है, ये ईश्वर की मर्जी है। पॉइंट ये है कि सारी की सारी जो कवायद है वो ये है कि यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। आप क्या करना चाहते हैं, आप किस लिए आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस धरती पर आप आने के बाद में बहुत जल्दी ही समझ लेते हैं कि उनको जीवन में क्या करना है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर साहब जो हैं वो क्रिकेट के भगवान कहलाए। बहुत बड़ी कोई बात नहीं थी, गेंद आती थी और बल्ले से मार देते थे और क्रिकेट के भगवान हो गए, क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया, उन्होंने पता लगा लिया कि मैं क्यों आया हूँ। अगर आप स्वामी प्रभुपाद की बात करें तो एट द एज ऑफ 86 उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनको क्या करना है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपकी एक जीवन यात्रा है, आप निरंतर उसके अंदर आप एक्सप्लोर करते रहते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, मैं आया क्यों हूँ इस लाइफ में और मुझे क्या करना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ढूंढ लेते हैं, जो ढूंढ लेते हैं वो डॉक्टर अनिल सुरीन बन जाते हैं और कहीं ना कहीं दूसरों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनको क्या करना है, तो वो आप जानते ही हैं कि आए भी और चले भी गए। तो ये जीवन है, इसी तरीके से चलता है, चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपकी इस पुस्तक के साथ हैं कि जीवन में आप एक नहीं कई किताबें लिखें और लोगों का इसी तरीके से मार्ग प्रशस्त करें। मैं इस किताब को अवश्य पढ़ूंगा। मैं एक रेडियो स्टेशन का डायरेक्टर भी हूँ। मैं चाहूँगा, विवेक जी से मैं गुजारिश करूँगा कि आप फिल्म सिटी नोएडा आएँ तो हम इस पुस्तक पर आपसे बातचीत भी करना चाहेंगे कि इस पुस्तक में क्या है। पहले मैं इसको पढ़ने के बाद मैं आपसे रूबरू होना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुशील जी ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात कही और मेरे को लगता है कि अब शाम सबका मूड थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, तो हम उसको बहुत लंबा ना खींचे, लेकिन हम शैलेंद्र जी को सुने बिना नहीं छोड़ेंगे। शैलेंद्र जी से गुजारिश करेंगे कि आप 2 शब्द बोलिए। धन्यवाद अमृता जी। डॉक्टर साहब बैठे थे। देवियों सज्जनों नमस्कार, मेरा नाम शैल भटनागर है और अगर आप नारी शक्ति और वीरता की 3 अप्रतिम तस्वीरों को देखना चाहते हैं तो सिर्फ मंच पर देखिए। आपको तस्लीमा जी दिखेंगी। 90 के दशक में जब मैं कॉलेज में था तो आपके बारे में खबरें आई। तब वो समय नहीं था जब हर मिनट में आपको अपडेट मिलता न्यूज़ का जो आजकल है। और आपने 90 से अब तक एक इतनी ज़बरदस्त लड़ाई पूरी दुनिया से लड़ी है कि देखने वाले देखते हैं और आपसे बहुत अच्छी तरीके से साहस पाते हैं।
लेफ्टिनेंट कर्नल रंधावा यहाँ पे बैठी हुई हैं, जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ज़िंदगी सबके सामने एक से एक परेशानियाँ खड़ी करती है, उससे कैसे जीतना है, जूझना है, कोई आपसे सीखे। डॉक्टर साहब ने एक बहुत शानदार किताब लिखी है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मेरे से पहले स्पीकर ने कहा कि ये पहली किताब है और ये पहली सीढ़ी है। उम्मीद कीजिए कि आप और किताबें लिखें और हम सबको और जागरूक करें। मैं एक बिल्कुल अलग दुनिया से आता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसी किताबों की आवश्यकता बहुत है। वो इसलिए क्योंकि अब हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर नौकरियाँ बहुत कठिन तरीके से मिलेगी। ऑटोमेशन इतना हो रहा है, जनसंख्याएँ बढ़ती जा रही हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत हैं और उत्तर ना के बराबर है। तो अगर ऐसी किताबें लिखी जाएंगी तो लोग जो फ़िलहाल नौकरी में हैं या जो अपना बिजनेस चलाते हैं उनको सहायता मिलेगी और आगे आने वाली पीढ़ी भी सीख पाएगी कि क्या ना करें। देखिए, क्या करना है ये तो अक्सर लोगों को पता रहता ही है, लेकिन क्या ना करना वो अपने आप में ही एक कला है। डॉक्टर साहब, मैंने कई सारे चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने पड़ते हैं और ये बात पक्की है कि अगर आज शुक्रवार होता तो मैं वीकेंड पर ये किताब निपटा देता, लेकिन अगले शुक्रवार तक मैं ज़रूर इसे निपटा दूँगा। आप आमंत्रित हैं रेडियो नेटवर्क पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ जितने लोग आपको सुनेंगे प्रेरणा आपसे मिलेगी और अपनी ज़िंदगी में लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात वंदना जी ने बहुत अच्छी कही कि जितने भी लेखक हैं या जितने भी लोग लिखावट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनके गर्भ में, उनके जहन में एक किताब होती है। एक किताब मेरे दिमाग में भी है और क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ये सोचा था कि मैं वो किताब कभी नहीं लिखूँगा। उसके पीछे एक कारण है। मेरे को लगता है कि शायद समय समाप्त हो गया जब लोग किताबों से कुछ सीखते थे। सारा ज़माना और सारी दुनिया एक फ़ोन पर आ गई है, लेकिन आपसे प्रेरणा मिली और हमारी दुनिया में फ़ाइनेंशियल मार्केट्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर आप समझिए आपको चीज़ें मिलती हैं सीखने और समझने के लिए। वैसे अगर आप इंटरनेट देखें या किताबें देखें तो लाखों किताबें और करोड़ों इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपको लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि बाज़ार में क्या करना चाहिए, कल नहीं अगले 5 मिनट में भी। तो मेरा दिल बहुत दुखता है जब मैं ये सब देखता हूँ और मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मैं लिखूँगा तो कौन पढ़ेगा, क्योंकि जो हकीकत है वो बाज़ार में कोई बताता नहीं और जो बताता है वो हकीकत नहीं है। करोड़ों लोग अपने लाखों रुपए गंवाते हैं हमारे बाज़ार में क्योंकि उनके पास इस तरीके की किताबें नहीं होती। तो ये आपने एक बहुत विजनरी स्टेप लिया है डॉक्टर सुरीन साहब और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब को इससे सहायता मिलेगी। आपको बहुत बहुत मुबारक। और ये मेरा एक अपना पर्सनल यूँ समझ लीजिए कि अचीवमेंट है। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं उस मंच पे बैठूंगा जहाँ पे तस्लीमा जी होंगी और आज ये ज़िंदगी में बहुत अनमोल क्षण है और आपका भी शुक्रिया और तस्लीमा जी धन्यवाद। Thank you so much, Sharnaji. And finally, I would like to call upon stage Dr. Inder Kasturia and request him to say a few words. Good evening, everyone.
डॉक्टर अनिल सुरीन को मैं प्रिसाइजली लास्ट 37 ईयर से जानता हूँ. ही इज माय बैचमेट. तो ही इज नॉट ओनली अ गुड ऑथर, इसकी जो फर्स्ट बुक उसने जो लिखी है और जो अभी पब्लिश हुई है उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. He has number of other qualities. He is a very good cricketer, all rounder, बैटिंग बॉलिंग सब बहुत अच्छी करता है. He is a very good singer. मतलब हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो भी एनुअल डेज होते थे तो सबसे अच्छे सिंगर में जो है अनिल सुरीन जी का नाम आता था. तो ही इज मल्टी टैलेंटेड पर्सन. तो इस बारे में मैं ये बोलूँगा जो बुक इसने लिखी है और जो बुक आज लॉन्च हुई है तो इस बुक में आई एम 101% श्योर, क्योंकि आई नो हिम फॉर लास्ट 37 इयर्स. तो जब हम मिलते हैं बात करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में कहाँ क्या चीज़ होती है बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें ही विल सजेस्ट यू फॉर द सोल्यूशन. फॉर अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम ही विल गिव यू अ सिंपल सोल्यूशन, वेरी सिंपल सोल्यूशन जो आप सोच भी नहीं सकते हैं. मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में ये बताऊंगा कि जैसे दुबई से कभी इंडिया आए, हम एक दिन के लिए मिले दिल्ली में और किसी वैसी कोई कैजुअल आउटिंग के लिए गए तो ऑन द वे कोई हॉस्पिटल देखा, उसके बारे में डिस्कशन हुआ, देन ही विल गिव सजेशन व्हाई डोंट यू बाय दिस हॉस्पिटल. सो ही इज बेसिकली हैज इंस्टेंट दिस थिंग आंसर्स फॉर नंबर ऑफ थिंग्स. ही हैज वेरी गुड दिस थिंग इंस्टिंक्ट टू नो अबाउट द थिंग्स. एंड आजकल जो हम देख रहे हैं इंडस्ट्रीज जिस दौर से गुजर रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कब क्लोज डाउन हो रही हैं, बड़े बड़े यूएस के बैंक्स बंद हो रहे हैं. मेरे क्लोज सर्कल में भी अभी रिसेंटली पता चला किसी को कि इतने 100 करोड़ का लॉस हुआ. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ups and downs, plus and minus of each and every industry, your leadership quality, your communication skill, and your all around the competitors, how to basically come out of this competition and succeed in your business and industry. So I think it's a wonderful step by Dr. Anil Surin to give this book to CEOs and people who are basically running businesses to make their business successful, and should not that business should not become a failure in their field. So many congratulations to Dr. Anil Surin, and thank you so much all the dignitaries for giving me the time to join you. Thank you so much. Thank you. आपने जब डॉक्टर सुरीन की इतनी तारीफ कर दी है तो अब हमारा मन कर रहा है उनसे गाना भी सुन ले. तो लेकिन सब चाहते हैं आप 4 लाइन आप गाना गा दीजिए और उसको एकदम इनफॉर्मल वे में, एंड देन विल प्रोसीड फॉर ड्रिंक्स एंड डिनर. मेरे से अच्छा अमृता जी खुद गाती हैं, एंड शी इज ए वेल नोन सिंगर एक्चुअली, एंड बेरा साहब भी बहुत अच्छा गाते. ओके. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही. थैंक यू.